A very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a very important topic of the class 12 business studies, that is on levels of management. As you know very well, most of the students asking about the uh, important functions related to the top level of management and the graphical diagrammatical presentation of the levels of management and how we can says and how we will give the answer in the examination, board examinations related to the levels of management. And it is a very important chapter for us, you know very well. So without creating any delay, you know very well, मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी इस पे, दैट इज इन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में. सो आई होप कि यू विल create a better understanding regarding the this topic, that is in levels of management. So I request you to each and every student kindly see this video very carefully, and if you have any doubts, so please ask me in the classes. Okay, so let's start the today's video. That is a top level of management. So please note down in your copy properly. The first one is a top level of management. If we are talking about the top level of management, so it consists of, if we are talking about the top level of management, so consists of it consists of member at the member at the highest level. Which level? Highest level of organization. ओके, सो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट किस तरह के लोगों को इंक्लूड करता है? इट कंसिस्ट ऑफ द मेंबर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सबसे टॉप रैंकर्स होते हैं, जो भी टॉप पर्सन होते हैं, इट इंक्लूड्स द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. Like if we are talking about the post of the top level management, so it includes the directors, board of directors, CEO, that is a chief executive officer, that is a chairman, president, etc. So in the sum of the examination, you know very well, आपको पोस्ट बता दी जाएगी और you will guess this person is related to which level of management. So if we are asking about to you, chairman is included the which level of management, so include the top level of management. So next is our thing is, sir, what are the rights and duties of the top level of management? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो लोग आते हैं उनकी राइट्स और ड्यूटीज क्या होती हैं? सो बेसिकली टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की जो राइट्स एंड ड्यूटीज होती है वो इस तरह से होती है. पहला तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी ऑफ द बिजनेस. इनका सबसे पहला काम होता है डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना इनका सबसे पहला काम होता है, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्टिव, विदाउट पॉलिसी वी कैन नॉट रन द बिजनेस. तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली कौन ऑपरेट करता है, कौन वॉच करता है, एक तरह से टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है. तो वो टाइम टू टाइम अपने बिजनेस, अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और उनकी पॉलिसी डिसाइड करता रहता है, क्योंकि यू नो वेरी वेल, विदाउट ऑब्जेक्टिव एंड विदाउट पॉलिसी हम किसी भी बिजनेस को इजिली कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. ओके, so this is the first rights and responsibility of the top level of management. The number second is to analyze, evaluate. The second one is to analyze and evaluate and deal with the and deal with the external environment. You know very well, there are basically two types of the environment which influence the business. बेसिकली हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. इंटरनल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होते हैं जो बिजनेस को इंटरनली अफेक्ट करते हैं, लाइक क्रेडिटर्स,
suppliers, purchaser, and the customer also included in the internal environment. If you are talking about the external environment, so it affects the business at a micro level, like a social environment, economic environment, political environment, economic environment, and the technological environment. So इन सारे environment में होने वाले changes, इन सारे environment से होने वाली opportunities, इन सारे environment से होने वाले threats, सबको analyze करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? टॉप लेवल की। यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना, उनके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस के पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव को टाइम टू टाइम अमेंड करना, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. Suppose if you are a top level if you are included in the top level of management, so हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लाइक कोविड सिचुएशन आ गई, तो उस कोविड सिचुएशन में अपने बिजनेस को किस तरह से मॉनिटर करेंगे, किस तरह से एडजस्ट करेंगे, किस तरह से उस बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, इस सब को एनालाइज करना, इवेल्युएट करना, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. बिकॉज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज to attain the objective within a specified time as well as to grow the business. बिजनेस को ग्रोथ होना चाहिए रेगुलरली. अगर बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, इट मींस बिजनेस कहीं ना कहीं हमारे लिए एक तरह से बर्डन बन जाता है और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली किसके ऊपर रहती है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. क्योंकि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज जस्ट लाइक अ पपेट, इज जस्ट लाइक अ वर्कर. बिकॉज इनको भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपने यहाँ अपॉइंट करते हैं. सुपरवाइजर लेवल को मिडिल लेवल क्या करता है? टॉप लेवल के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अपॉइंट करता है. तो बेसिकली ये मैनेजर सही ढंग से काम करें या ना करें, इनके इफेक्ट क्या पड़ेगा? सैलरी पे इफेक्ट पड़ेगा. इनका कुछ नहीं बेसिकली जाएगा. ये किसी और कंपनी में जाकर बेटर पैकेज पे, बेटर सैलरी पे काम करेंगे. बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के मेन पर्सन लाइक अ चेयरमैन, लाइक अ डायरेक्टर, लाइक अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा. क्योंकि ये लोग चेंज होकर किसी और कंपनी में जाकर जॉब कर सकते हैं, ये कहीं और जाकर जॉब कर सकते हैं, बट ये कहीं और नहीं जाएंगे क्योंकि ये इनका खुद का बिजनेस है, ये उनका खुद का घर है, ये उनका खुद की कैपिटल है. सो दैट्स व्हाई टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ द विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. यानी एक्सटर्नल एनवायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना, उसके लिए हमेशा टाइम टू टाइम अपनी चीजों को चेंज करते रहना. एज वेल एज द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज टू स्ट्राइव फॉर वेलफेयर, टू स्ट्राइव फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ बिजनेस. जैसे मैं आपको बता रहा था कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि बिजनेस किस तरह से, बिजनेस का वेलफेयर हो और बिजनेस हमेशा सरवाइव करता रहे. सर्वाइवल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द business as well as the management, because without survival we cannot earn more profit, we cannot grow, because the first objective of every manager is the survival. Thereafter we will move to the growth, thereafter we will move to the profit. So the first objective of every management, every organization is the survival and the welfare of the organization. So that's why top level of management includes director, CEO, president, board of director, and chairman. And the responsibility of top level of management is determine objective and policy of the business, to analyze and evaluate and deal with the external environment, as well as to strive for welfare and survival of the business. And एक और इनका बहुत important role है top level of management का, वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो मिडिल लेवल है और सुपरवाइजर लेवल है, इनको प्रॉपर रिसोर्स प्रोवाइड करना, इनको प्रॉपर कैपिटल प्रोवाइड, कैपिटल मनी नहीं, रिसोर्स प्रोवाइड करना. इट इज बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. यू नो वेरी वेल, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में ब्रांच मैनेजर हो, सेल्स मैनेजर हो, फाइनेंस मैनेजर हो, all the activities will be financed by the top level of management. अगर प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन के लिए लैंड चाहिए, मशीनरी चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए, एक पूरा सेट चाहिए जिसमें हम प्रॉपर बैठ के, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, रॉ मटेरियल होनी चाहिए. ये सब का सब प्रॉपर फ्रेमवर्क कौन डिसाइड करके देता है? दैट इज अ टॉप लेवल ऑफ.
So the very important responsibility of top level management is to provide the resources to the middle level of management, and middle level of management अपने convenient के according जैसे जैसे उसको objective achieve करना है उसके according वो क्या करता है, वो resources provide करता है to the supervisory level of management. So top level of management के basically कितने role हो गए? 4. First, determine objective and policy of the organization. Number 2, to analyze and and evaluate and evaluate and deal with the external environment. And number 3, to strive for welfare and survival of the business. And number 4, provide resources to the middle level of management and the lower level of management, that is the supervisory level of management. Okay, so let's we move to the second level of management. The second level of management is middle level of management. Okay, the second level of management is middle level of management. Basically, the middle level of management consists of a member of a group who are coordinating between the top level of management and supervisory level. टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव बताता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट उसी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, उस टारगेट को टाइमली पूरे करने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ द सुपरवाइजर लेवल. इट मींस मिडिल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट इज अ चेन बिटवीन इंपॉर्टेंट चेन बिटवीन टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट. यानी कि अगर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को अपना कोई काम कराना है तो वो डायरेक्टली सुपरवाइजर लेवल से नहीं करा, क्योंकि सुपरवाइजर लेवल को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको उससे काम कराने के लिए मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज देयर. सो दैट्स व्हाई मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज अ it consists of it consists of members or groups who are it consists of members or groups who are concerned with implement concerned with implement of the implementation of policies laid down by top level of management, that is a top management. It means टॉप मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मिडिल लेवल. टॉप लेवल ने जो ऑब्जेक्टिव बताया है, टॉप लेवल ने जो गोल बताया है, उस गोल को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की है. ओके, अगर हम बात करें मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की तो कौन कौन आएगा? दिस लेवल इंक्लूड हेड ऑफ डिपार्टमेंट. This level include heads of department. Okay, head of department such as finance manager, production manager, okay, human resource manager, cash manager, marketing manager, branch manager, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर, ब्रांच मैनेजर. ओके, सो यू कैन सी दैट कितने तरह के मैनेजर
that is the chief manager are working in the organization. So that's why middle level of manager are responsible for the implement of the policies and objective constructed by the top level of management. And it includes the head of departments, heads of the various department. If in short way we can say that. यानी इसमें हम different departments के heads को include करते हैं. Okay. So what are the role of the middle level of management? So let's we discuss it. So what are the roles of middle level of management? Let's we discuss it. Role of middle level of management. So role of middle level of management are as follows. The first one is to interpret the policy, to interpret the policy framed by framed by टॉप मैनेजमेंट. यानी टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है, जो रूल बनाया है, जो ऑब्जेक्टिव बनाया, उसको इंटरप्रेट करना और उस हिसाब से जजमेंट लेना कि क्या हम इस ऑब्जेक्टिव या पॉलिसी को फॉलो करके बिजनेस को गेन पहुंचा सकते हैं कि नहीं पहुंचा सकते. नंबर सेकेंड, टू असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू असाइन duties and responsibilities to lower level of manager, to lower level of managers. यानी जो लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं उनको ड्यूटी असाइन करना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. द थर्ड वन इज that is a very important, to select and appoint employees. You know very well HR department is also included in the middle level of management. तो HR department का काम क्या होता है? एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करना, उनको अपॉइंट करना, चाहे वो मिडिल लेवल पे वर्क करे, उनसे लोअर लेवल पे या फिर सुपरवाइजर लेवल पे काम करना. सो मिडिल लेवल का काम ये भी होता है कि वो एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना, सेलेक्ट करना उनके नीड के अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यानी ऑर्गेनाइजेशन के नीड के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करना, अपॉइंट करना. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल ऑफ द मिडिल लेवल ऑफ management. And the fourth and the last but not the least, that is to cooperate किस तरह का कॉपरेशन की यहां बात हो रही है? इन दिस टू कॉपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट. यू नो वेरी वेल, एक कई सारे डिपार्टमेंट आर वर्किंग इन द, मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो सारे डिपार्टमेंट के बीच में कॉपरेट होना चाहिए विथ अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग. यानी फंक्शन स्मूथली वर्क करे. इट इज अ वेरी स्मॉल. ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ना, प्लीज नोट डाउन इन योर माइंड. मैं इतनी मेहनत इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको ईच एंड एवरी लाइन विल लर्न बाय यू. हर एक एक लाइन आपको अच्छे से लर्न हो जाए. दैट्स व्हाई यू विल write in your answer copy in the board examination ditto as your book. That's why examiner को कहीं chance ना मिले कि वो आपके कहीं marks काट ले. That's why I will write all the topics on the board. So please do not create a reflection level at your work, because this is a time to teach, to learn something. That's why I will write all the things on the board. Okay, so the fourth role of the mid level of management, that is to cooperate with other department for smooth functioning. Okay, so please do not confused regarding this topic. Okay, so we discussed the two important topic of today's video. In this video,
So you can see that in today's video we discuss a very important topic of class 12 business studies, that is the level of management. And we can see that there are basically three levels of management which are represent any organization, and with the help of the level of management we can easily identify and knowing about their responsibilities, authority and superior and subordinate relationship. In this video, we discuss the first two level of management, that is the top level of management, middle level of management. In the next video, we will come to the introduce the third and very important level of management, that is the supervisory level of management. And in this video, we also see that each and every points uh, written by me on the board, because of you will learn all the topics very easily, and written in the examination, when you give the examination in the future, in the board examination on the or in the pre-board examination, you will get all the things in the same way. Please do not confuse with the language with the appropriated words which are used by me. Okay, and you can see that in this video we also discussed the three level of management, as well as what are the role of top level of management in our organization and what are the role of the middle level of management in our organization. Both are the very important level of the management, because top level of management is responsible for the providing resources to the middle level of management, and as well as responsible for the framing of policies and objective of the management, objective of the organization. And with the help of the given resources by the top level of management, as well as given by the help of the given policy of the by the top level of management, middle of level of management analyze and interpret and implement such policies and expend the expense the resources given by the top level of management to achieving a goal with efficiently and effectiveness. It means within a time, within a least expense the resources, minimum utilization of resources and maximum results. Okay, and last level of management, that is a operational level of management, supervisory level of management and lower level of management. It means levels of management का ये सबसे थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, जिसका काम होता है बेसिकली वर्क करना, सुपरवाइज करना, बिजनेस को ऑपरेट करना, एंड इट इज अ लोवेस्ट लेवल ऑफ, यानी पूरा अगर हम कहें ना, बेस जो होता है पूरे मैनेजमेंट का या पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो बेस होता है, it is a lower level of management. So what are the operational level of management, supervisory level of management, lower level of management? So please note down, it refers to the group, it refers to the group or member who are concerned it refers to the group oblique member who are concerned with execution of the work, execution ऑफ वर्क, बेसिकली वर्क को कंप्लीट करने का काम, वर्क को फिनिश करने का काम किसके ऊपर होता है, दैट इज सुपरवाइजरी लेवल. ओके, एग्जीक्यूशन, ई एक्स ई सी यू टी आई वन, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, वर्क को कंप्लीट करने का काम. दे आर ऑल्सो नोन एज द, ये याद रखिएगा, दे आर ऑल्सो नोन एज द as first line manager. Sometimes in the examination आपसे पूछता है who is the first line manager. So operational levels of management पे काम करने वाले लोग, supervisory level पे काम करने वाले लोग क्या कहलाते हैं, first line manager, first line manager कहलाते हैं. Okay, so what is operational level of management? It refers to the groups or member who are concerned with the execution of work. They are also known as the first line manager. इसमें कौन कौन से लोग इंक्लूड करते हैं, दिस लेवल इंक्लूड्स
foreman, clerk and इंस्पेक्टर, यानी इनमें हम लोग किस लोग को इंक्लूड करते हैं? फोरमैन, क्लर्क, सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर को इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब आपके मन में बेसिकली ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर व्हाट आर द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर लेवल, दैट इज ऑपरेशनल लेवल। सो इनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो मैं इसको शॉर्ट में आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। So the first role of operational level, that is the supervisory level of management, is to plan and execute, to plan and execute day to day operation, day to day operation, यानी बिजनेस में जो डे टू डे एक्टिविटी हो रही है ना, उस डे टू डे एक्टिविटी को प्लान करना और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, इट इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिगेस्ट रोल ऑफ द सुपरवाइजरी लेवल। सेकेंड, टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल, यानी ये सुपरवाइज करते हैं और कंट्रोल एस्टेब्लिश करते हैं किस पे? कंट्रोल द वर्कर्स, वर्कर्स को सुपरवाइज करना, उनको कंट्रोल करना, ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नंबर थर्ड, टू अरेंज मटेरियल्स, मटेरियल्स की कितनी जरूरत है काम करने के लिए? मटेरियल्स एंड टूल्स टू स्टार्ट द प्रोसेस, प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली किस तरह के टूल्स एंड किस तरह के मटेरियल्स की जरूरत है, इट इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एज वेल एज टू represent workers grievances and suggestion बिफोर द मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के सामने ये क्या करते हैं, बेसिकली प्रेजेंट करते हैं ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस मतलब अगर कोई मतभेद है, कोई भी किसी काम को लेकर किसी प्रकार का कोई डाउट है या कोई भी सजेशन है, जिस कोई ऐसा वर्क है जिसको लेकर दो पार्टी क्रिएट हो रही है, दो ग्रुप क्रिएट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो बेसिकली जो सुपरवाइजर लेवल है वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी ग्रीवेंसेस को और अपने सजेशन को मैनेजमेंट के सामने रिप्रेजेंट कर। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, एंड दीज आर द बेसिक रोल ऑफ द ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उनमें किस तरह के लोग को इंक्लूड करते हैं? ग्रुप्स या मेंबर हु आर कंसर्न्ड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, जो काम को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करते हैं, बेसिकली काम करते हैं। एंड इसको हम फर्स्ट लाइन मैनेजर का भी क्राइटेरिया रखा जाता है, इनको कहा जाता है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, और इसमें जनरली फोरमैन, क्लर्क, इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, इन लोगों को इंक्लूड किया जाता है। इनका बेसिकली रोल क्या होता है? डे टू डे ऑपरेशन को प्लान करना, उसको एग्जीक्यूट करना, वर्कर्स जो कि काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना, उनको कंट्रोल करना, मटेरियल और टूल्स को अरेंज करना ताकि हम प्रोसेस को स्टार्ट कर सकें और प्रोसेस कहीं भी रुके ना। ऐसा नहीं कि प्रोसेस रुक जाए, इसके लिए ऑपरेशनल लेवल जिम्मेदार होता है, क्योंकि हमें पता है ऑपरेटिंग लेवल्स ऑफ मैनेजर्स को ये पता है कि हमें किसी काम को प्रोडक्शन करने के लिए कितने टूल्स की, कितने मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मटेरियल और टूल्स को अरेंज करें और काम को रुकने न दें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू रिप्रेजेंट वर्कर ग्रीवेंसेस एंड सजेशन बिफोर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के सामने अगर कोई प्रॉब्लम है उसको प्रेजेंट करना, कोई सजेशन है तो उसको प्रेजेंट करना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ लेवल्स ऑफ that is supervisory level of management. So you can see that there are basically 3 levels of management in the organization from top to bottom. At the top you can see that the first level of management, that is the top level of management. मिडिल में देखो, थोड़ा नीचे आओ तो आप देखोगे कि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट who coordinate between the top level of management and supervisory level of management. And number third is
सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बेसिकली फायदा क्या होता है, इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है जो ऑब्जेक्टिव टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने डिसाइड किए हैं, द ऑब्जेक्टिव विच आर सेटिंग अप बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसको लेकर वर्क करना। दैट इज द मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। प्लान करना, एग्जीक्यूट करना डे टू डे एक्टिविटीज को, टूल्स एंड मटेरियल्स की प्रॉपर अरेंजमेंट करना, एज वेल एज वर्कर्स को सुपरवाइज करना, उसको कंट्रोल करना, और अगर किसी प्रकार का कोई ग्रेवेंसेस है, कोई सजेशन है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसको मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करना, ताकि मैनेजमेंट उसको टाइमली रिमूव कर कर आगे के काम को इम्प्लीमेंट कर सके। Okay, so let's we move to the next topic at the end of today's video. I hope it is clear for you ki what is operational level of management and which types of the person included in the operational level of management and what are the role of the operating level of management. So the next level of management, the next topic is our today's video is, it is a very short topic, that is a importance of management. So basically importance of management is also categorized as the benefit from the management, categorized from the merits of the management, role of the management. So इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की कुछ हेडिंग्स आपको याद होनी चाहिए। बेसिकली केस स्टडीज में, एग्जाम में आपको कोई लाइन दे देता है, आपको उस लाइन से आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये जो लाइन है ये मैनेजमेंट की किस इंपॉर्टेंस को एक्सप्रेस करता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. So if we are talking about the importance of management, so the first heading of importance of management is helps in achieving group goal. When we are talking about the management, so it is also believe in the group goal. It not totally believe on the personal goal. मैनेजमेंट की जब भी हम बात करते हैं ना, तो मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप गोल की बात करता है, इंडिविजुअल गोल की ज्यादा बात नहीं करता है, क्योंकि बिकॉज मैनेजमेंट इज वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर द इंडिविजुअल्स। क्योंकि मैनेजमेंट कभी एक लोग के को लेकर नहीं होगा, हमेशा जब भी होगा जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कई लोग काम करेंगे तो वहां मैनेजमेंट अप्लाई हो। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज वर्किंग फॉर द ग्रुप गोल, नॉट फॉर द इंडिविजुअल गोल. So the first importance of management is it helps in achieving group goal. Number second, it increases efficiency. What is efficiency? You know very well. Efficiency means complete the task within a work and least utilization of resources. You know very well, our wants is unlimited but the resources is limited. That's why इफिशियंसी होना बहुत जरूरी है काम। अगर हम काम को टाइमली कंप्लीट कर रहे हैं, टाइमली कंप्लीट करने के साथ साथ उस काम को हम मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ कर रहे हैं, तो क्या एक कहावत है ना, सोने पे सुहागा हो जाता है। इट मींस इट इज अ वेरी बेस्ट थिंग फॉर द मैनेजमेंट कि इसकी हेल्प से हम टाइमली वर्क को कंप्लीट करते हैं और जो हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो कम से कम यूज करते हैं। द थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज creates a dynamic organization. Creates dynamic organization. Basically, what is the meaning of dynamic organization? Dynamic organization means any organization which are ready to adjust in any types of the condition. Dynamic organization means any organization which are ready to adjust in any types of the situation, any types of the condition. जैसे हम कहते हैं ना, ह्यूमन बॉडी जो होती है वो डायनेमिक नेचर की, बिकॉज वो विंटर सेशन में भी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, समर सेशन में भी कर लेती है। वो जैसा नेचर होता है ना, नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को उस हिसाब से कन्वर्ट कर लेती है। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाता है। डायनेमिक मतलब चेंजेबल बनाता है, जैसी कंडीशन, जैसा इन्वायरमेंट, वैसा ही यहां पर उनके साथ बिहेव भी किया जाता है। दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज वेरी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है कि ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाना, यानी कि फ्यूचर में होने वाले चेंजेस, फ्यूचर में होने वाले
इनोवेशन को लेकर अपने आप को एडजस्ट करते रहे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टू क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में क्या रहे, रेडी रहे कि वो अपने आप को चेंज कर सकता है। द नेक्स्ट वन इज the next objective, the next importance of management is helps in development of society, helps in development of society. If we are talking about the society, so you know very well, management fulfill several social objective like providing employment, providing good quality of product. You know very well इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो उससे ऑब्जेक्टिव से भी रिलेट करता है। बेसिकली मैनेजमेंट का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। देयर आफ्टर वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि वो मैनेजमेंट की हेल्प से हम अपनी सोशल ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करते हैं, लाइक गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करना सोसाइटी को, रीजनेबल प्राइस पे गुड्स प्रोवाइड करना किसको, सोसाइटी को। अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में या पूरे देश में ही देख लो, पूरे वर्ल्ड में देख लो, अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पर है। तो एक अच्छे मैनेजमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लोगों को एम्प्लॉयड कर सकते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, लोगों के लिए उनके लिवलीहुड के लिए उनके लिए सोर्सेज प्रोवाइड करा जा सकते हैं। और मैनेजमेंट की हेल्प से कई तरह के जो सोशल इविल्स हैं उनको खत्म करने की कोशिश जाती है। बेसिकली जो सोशल इविल्स होती हैं उनका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज द मनी। अगर मनी नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो दूसरे तरीकों से पैसा कमाने की कोशिश करता है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, कई तरह की सोशल इविल्स को खत्म करता है, लाइक अ पॉवर्टी, लाइक अ अनएम्प्लॉयमेंट। तो जिसके हेल्प से जो हमारे कंट्री में, जो हमारी सोसाइटी में जो क्राइम है वो रेट भी कम होता है। तो आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट एक ऐसा फिनोनिमा है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे न सिर्फ हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करते हैं एज वेल एज सोशल ऑब्जेक्टिव को भी कंप्लीट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट वी ऑलमोस्ट फुलफिल द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम किसी भी पर्सन के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उनके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेंगे तो ऑटोमेटिक हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी कहीं ना कहीं पूरा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। Okay, so I hope you will create a better understanding regarding the importance of management। और भी बहुत सारे importance point हैं मैनेजमेंट के। so अगर आप बुक में ओपन करेंगे तो you find a lots of importance and advantage of management। so in this today's video we discussed the first topic, that is the level of management। thereafter we discussed the importance of management and I hope today we discussed all the topics very easily। आज के लिए इतना ही। thank you, thanks a lot।